Am I audible, students? Online? Am I audible? Yes, sir. Okay, fine. Okay, so we will start with a new topic, and this topic is called as graphs. Okay, so we are starting with graphs, and for today's class we are going to discuss. For today's class we are going to discuss exactly what is the difference between a graph and a tree. Okay, so we are going to see what is the exact difference between a graph and a tree. Okay, so what exactly is a graph? Look at this: A, B, C. Now, this is actually a graph. How do you define a graph mathematically? आपके पास दो चीजें होंगे यहाँ पे. एक होगा vertices, जिसको हम nodes कहते हैं. These are the vertices or the nodes. And then you have another thing. You will have links between these vertices, and these links are known as edges. So this is an edge, this is an edge, and this one is also an edge. So mathematically, when we define a graph, we have two things. First is the set of vertices, also known as nodes, and the set of edges. For example, अगर आप इस ग्राफ को देखें, इसमें A है, B, C, D. A is connected to B, B is connected to D, A and D are also connected, and C is not connected to any graph. Sorry, any node. So इसके लिए this graph can be represented by two sets B and E, where B is, can you tell me B में क्या आएगा? B में क्या आएगा इसमें? इसके जो vertices है, यानी A, B, C, D. These are the vertices. And what about E? Capital E में क्या आएगा? E are the edges. So इसमें पहला edge है AB. So this is like an ordered pair AB. दूसरा edge कौन सा है? BD. So it's BD. This is the ordered pair. And तीसरा edge है AD. Okay. This is a unidirectional graph. So आप AD लिखे या फिर DA लिखे, दोनों सेम है. ठीक है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है. सो इसमें कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं है. सो इट्स A और D. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप A से D के बारे में जा रहे हैं या D से A के बारे में जा रहे हैं. वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लिंक. ठीक है. सो ए ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाय टू सेट्स. द फर्स्ट सेट इज द सेट ऑफ वर्टिसेस and the second set is the set of edges. यहां तक किसी को डाउट है? Any doubts on this? Okay, next. Imagine कीजिए that कोई एक कंट्री है, कोई एक नेशन है जहां पे ये चार सिटीज हैं, A, B, C, D. These are 4 cities. और हम रेलवे के ट्रैक बिछाना चाहते हैं, like this. A and D के बीच में रेलवे ट्रैक बिछा दिया हम लोगों ने. So now my question to you is that आप कितने कम से कम रेलवे ट्रैक बिछा के इन शहरों को कनेक्ट कर सकते हैं? So the challenge is to connect the cities using minimum number of railway tracks, using minimum tracks. So मुझे बताइए, 4 शहर को कनेक्ट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने लगेंगे? ओके, कोई कह रहा है 2. ऑनलाइन से कोई रिस्पॉन्ड कर सकता है इसमें? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्स नीडेड टू कनेक्ट द 4 cities? 3. Okay, the correct answer is 3. Can you tell me how?
एक आंसर देखिए, मैं ए और बी को कनेक्ट कर रहा हूं। दूसरा बताइए, दूसरा कहां से कहां हो सकता है? B to D. या बी टू डी कैन बी वन ऑप्शन, या और गिव मी सम मोर ऑप्शंस। ए टू सी, ए टू डी। ओके, आई एम कनेक्टिंग ए टू डी। ठीक है, आप और भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, दो 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 रेलवे ट्रैक हो गए। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? B to C. कैन आई कनेक्ट एसी? कैन आई कनेक्ट एसी? या आई कैन कनेक्ट एसी, राइट? ये देखो एसी। ओके, अब मैं तीनों शहर को कनेक्ट कर, चारों शहर को कनेक्ट कर चुका हूं। अगर आपको बी से डी जाना है तो आप कैसे जाएंगे? स्टेशन बी से स्टेशन डी कैसे जाएंगे? You will have to go from B to A and then from A to D, right? Similarly, अगर आपको मैं बोलूं कि मुझे C से B जाना है तो कैसे जाएंगे? C से B, C से पहले कहां जाएंगे? C से A and then A से B. So the point is that at this point our cities are connected. Our cities are connected using railway tracks. Do you agree? All of you agreed? ठीक है? At this point our cities are connected in a railway network. आप ये नहीं बोल सकते कि सर इसमें से कोई ऐसा शहर है जहां तक मैं जा ही नहीं सकता। No, you can go to any city. आप किसी भी शहर से स्टार्ट करके किसी भी दूसरे शहर तक पहुंच सकते हैं। Agreed? All of you agreed? Okay. चार शहर को कनेक्ट करने के और कोई तरीके हो सकते हैं क्या? A B C D और कोई तरीका हो सकता है? कोई भी तरीका बताओ, या एनीवन? ए से, अच्छा मुझे ए से नहीं जाना, मुझे डी से जाना है। डी से ए, ओके। सो डी से ए का एक रेलवे ट्रैक, और दूसरा ट्रैक D to B. व्हाट अबाउट बी टू सी? कैन वी हैव बी टू सी? Yes, sir. ओके, मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं, ये लो। नाउ दो ट्रैक हो गए, और कोई ट्रैक चाहिए कि ये पूरा कवर हो गया? Then D to B. D to B, okay, fine, D to B. Now this is connected or disconnected? Connected. So now you can see that we have connected 4 cities using how many tracks? Using 3 tracks. Now what happens if we increase the track? पहला क्वेश्चन, अगर ट्रैक बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एंड दूसरा क्वेश्चन, अगर ट्रैक कम करेंगे तो क्या होगा? These are 2 questions. Okay, can you give me the answers? एक ट्रैक बढ़ाएंगे तो क्या होगा और एक ट्रैक कम करेंगे तो क्या होगा? या चलिए एक ट्रैक बढ़ाते हैं। मुझे बताइए, मुझे इस रेलवे नेटवर्क में एक ट्रैक एक्स्ट्रा करना है, कौन सा ट्रैक बढ़ा सकता हूं मैं? एसी। एसी, चलिए बढ़ा देते हैं। जैसे ही मैं ए और सी को जोड़ता हूं, अब क्या हो गया बताओ? टाइम कम लगेगा A से C जाने में। टाइम कम लगेगा, दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। बट क्या इस ग्राफ में साइकिल हो गया? अब साइकिल बन गया? डज दिस ग्राफ कंटेन अ साइकिल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। किसी और एग्जांपल में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट सी दिस एग्जांपल, ए बी सी डी। मैं ऐसा कनेक्ट कर रहा हूं, ए से सी, सी से डी, एंड ए से बी। क्या ये ग्राफ अभी कनेक्टेड है? कनेक्टेड है। अब मैं इसमें एक एज जोड़ता हूं, कौन सा एज जोड़ सकता हूं? ए टू डी जोड़ सकता हूं, बी टू डी जोड़ सकता हूं, कौन सा एज जोड़ना है बताइए? चलिए ए टू डी जोड़ते हैं। जैसे ही मैंने एक भी एज जोड़ा, क्या बन गया? साइकिल। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रैक्स from 3 to 4, we have a cycle. All of you agree with this point? All of you agree with this point? अगर आप ग्राफ में 4 नोड के ग्राफ में 3 एज को जोड़ते हैं, you have a connected graph. जैसे ही आप 4th एज जोड़ते हैं, the moment you add the 4th edge, you have a cycle. All of you agree? अच्छा, on the opposite side, अगर मैं एक एज को कम करता हूं तो क्या होने वाला है? ओके, मुझे कोई 3 एज बताइए इसमें से, गिव मी 3 एजेस, 3 ट्रैक्स बताइए। सी से बी, दूसरा एज
A to B. Give me the third edge. B to D. Okay. Now, what happens if I remove one edge? कोई मुझे बताएगा अगर एक एज को हटाएंगे तो क्या होगा? सर कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, कनेक्टिविटी हट जाएगी। मुझे बताइए कौन सा एज हटाना है? कौन सा एज हटाएं? बीडी हटा, बीडी हटा देते हैं। चलिए चलिए बीडी को हटाते हैं। तो अगर मैं बीडी को हटाता हूं तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है? सो नाउ माय ग्राफ इज दिस। अब क्या हुआ बताइए, क्या हो गया इसका? डी डिस्कनेक्ट हो गया। दिस नाउ बिकम्स एन आइसोलेटेड सिटी, डिस्कनेक्टेड ग्राफ बन गया। अब इस शहर तक कोई भी ट्रेन का रास्ता नहीं जाता, ठीक है? अच्छा, अगर मैं बीडी को ना हटा के, अगर बीडी को ना हटा के मैं इमेजिन कीजिए मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है। ओके, लुक एट दिस ग्राफ, ए बी सी डी। मान लीजिए मैं कनेक्ट कर रहा हूं ए से डी, मैं कनेक्ट कर रहा हूं बी से सी, ठीक है? और मान लीजिए मैं कनेक्ट कर रहा हूं ए से बी। अब मुझे बताइए इस ग्राफ में अगर मैं बीसी को हटाता हूं तो क्या होगा? अगर मैं बीसी को हटाता हूं तो क्या होगा? नहीं, बीसी को नहीं। अगर मैं ए बी को हटाता हूं, सॉरी, अगर मैं ए बी को हटाता हूं तो क्या होगा? रिमूव ए बी, इस एज को हटाइए, क्या होगा? चलिए हटाते हैं, सॉरी। ओके, ए बी को हटाइए, बताइए क्या होगा? क्या ये ग्राफ कनेक्टेड है? नहीं है। बट इस ग्राफ में कोई आइसोलेटेड वर्टेक्स है क्या? ऑनलाइन, क्या इस ग्राफ में कोई आइसोलेटेड वर्टेक्स है? नो सर। तो फिर क्या कनेक्टेड क्यों नहीं है? Why is this graph not connected? Why? सर क्योंकि बी डी को एक्सेस नहीं कर सकता। Now this graph is actually two different networks. ये देखो, ये नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 1 है जिसमें 2 शहर हैं, और ये नेटवर्क 2 है जिसमें 2 शहर हैं। Now this graph is actually two different networks. पहले नेटवर्क में 2 शहर है AD और दूसरे नेटवर्क में 2 शहर है BC। डू यू एग्री? ये ऐसा हो गया कि पूरे इंडिया का रेलवे नेटवर्क को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा नॉर्दर्न शहरों को जोड़ता है और एक हिस्सा साउथ ईस्ट इंडिया के शहरों को जोड़ता है, लेकिन नॉर्थ के शहर से साउथ के शहर में जाने के लिए कोई रेलवे ट्रैक नहीं। सो डू यू एग्री दिस ग्राफ इज कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड? क्या बोलेंगे आप? हाँ, बट दिस ग्राफ इज नॉट कनेक्टेड, सो दिस इज अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ। इट कंटेन्स 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स। इनको बोलते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट। ये देखिए, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ वंस अगेन। अगर किसी ग्राफ में कुछ ऐसा ग्राफ है, मान लीजिए, ठीक है? ट्राई टू सी द ग्राफ, ट्राई टू एनालाइज द ग्राफ। मान लीजिए ये कनेक्टेड है, ये बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, लाइक दिस, ठीक है? नाउ पहले बताइए ये ग्राफ जो अभी आपको दिख रहा है, क्या ये कनेक्टेड है कि डिस्कनेक्टेड है? दिस ग्राफ इज कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड? कनेक्टेड। इनमें से कौन सा एज है जिसको मैं हटा दूं तो ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो सकता है? बीई। एक्चुअली एनी एज, मैं किसी भी एज को हटा के ग्राफ को डिस्कनेक्टेड कर सकता हूं। किसी भी एक एज को सिलेक्ट करो, उसको हटा दो, देखो ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। लेकिन एक एज ऐसा है, वो है बीई। अगर मैं बीई को हटा दूं, बी को रिमूव कर दूं, तो आई विल हैव two connected components. I will have 2 connected components. Now what is a connected component? देखते हैं, आइए इसको हटा के देखते हैं कि क्या बनने वाला है ये ग्राफ। ओके, लेट अस रिमूव बीई। चलिए मैं बीई को हटा रहा हूं। मैं जैसे ही बीई को हटाता हूं, देखिए बीई को हटाने के बाद क्या बन गया? आई हैव 1 कंपोनेंट जो आपस में कनेक्टेड है। दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज द फर्स्ट कनेक्टेड कंपोनेंट। ये आपस में एक छोटा सा ग्राफ बना रहा है जो कनेक्टेड है। एंड आई हैव अनदर कनेक्टेड कंपोनेंट, ये भी अपने आप में कनेक्टेड है, बट ये अपने आप में एक दूसरा कनेक्टेड कंपोनेंट है। पूरा ग्राफ को देखेंगे, देन द पूरा कंप्लीट ग्राफ इज नॉट कनेक्टेड। सो डू यू एग्री विथ मी दैट
this graph is not connected completely, but it contains two different connected components. Yes or no? That can be used. That can be used to make this graph connected. कितने कम से कम एजेस से आप इस ग्राफ को कनेक्टेड बना सकते हैं? Yes, any answers? The answer is 4. The answer is 4. कौन से 4 एज हैं? Give me some 4 edges. To E? मैं A से C कनेक्ट कर सकता हूं क्या? Can I connect? Yes, sir. What about B to E? Can I connect? मैं 2 एज यूज कर लिया हूं, अब मेरे पास 2 बचे हैं. What about B to D? कर सकता हूं? अब मेरे पास एक ही एज बचा है, क्या करूं अब? अच्छा, क्या ये ग्राफ अभी कनेक्टेड है या नहीं है? No, sir. ये कनेक्टेड क्यों नहीं है? मुझे तो कनेक्टेड लग रहा है. Sir, two different components. Different polygon. ए और ई कनेक्टेड नहीं है. इसमें 2 डिफरेंट कनेक्टेड कंपोनेंट्स है. एक कंपोनेंट है ये और दूसरा कंपोनेंट है BED. ओके, दिस ग्राफ इज नॉट कनेक्टेड. This graph is not connected at this point. It contains two connected components. पहला कंपोनेंट है AC का और दूसरा कंपोनेंट है BED का. ठीक है, अभी ये ग्राफ कनेक्टेड नहीं है. अब मुझे कनेक्ट करने के लिए कहां पे एज बनाना पड़ सकता है? CD. क्या ऑप्शन है हमारे पास? Can I connect AB? Can I connect AB? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Connect AB. एक ऑप्शन ये है. दूसरा ऑप्शन क्या है? ए ई. AE. तीसरा ऑप्शन क्या है? D. AD. AB. वेरी गुड. AD. ओके, और क्या ऑप्शन है? सी बी. CB. CD. या CB कर दिया ऑप्शन. और क्या ऑप्शन है? CD. ओके, ये बहुत सारे ऑप्शन है. रैंडमली कोई एक ऑप्शन ले लेते हैं. बताओ कौन सा ऑप्शन लेना है? चलो A ही लेते हैं रैंडमली. ठीक है. नाउ दिस ग्राफ बिकम्स कनेक्टेड. ऑल ऑफ यू एग्री दिस ग्राफ इज कनेक्टेड नाउ? ऑल ऑफ यू एग्री दिस ग्राफ इज कनेक्टेड? इसमें कितने नोड्स हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स? 4. कितने एजेस हैं? ओह सॉरी, नंबर ऑफ नोड्स आर 5 एंड कितने एजेस हैं? नाउ at this point we have a tree. इसको नोट करके रखिए. At this point जो आपको दिख रहा है that is a tree. So tree कहां से आ गया? ट्री यहां तो ट्री आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है. ट्री कहां से आ गया? At this point we have a tree. ट्री कहां से कनेक्ट हो गया? Let me tell you. A tree is a नोट करके रखिए. A tree is a minimally connected graph. Minimally में डबल आएगा, क्या आएगा? Tree is a minimally connected graph. Okay, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब तुम्हारे पास 5 नोड थे और तुमको अगर इस ग्राफ को कनेक्टेड बनाना है और तुम बहुत कंजूस हो, मिनिमम कितने एजेस से आप इस ग्राफ को कनेक्टेड बना सकते हैं? मिनिमम, और वो है 4. इससे फर्क नहीं पड़ता वो 4 कौन से हैं. इससे फर्क नहीं पड़ता वो 4 कौन से हैं. देखो मैंने कोई भी रैंडमली 4 ले लिया. ठीक है, 5 नोड के ग्राफ को अगर कनेक्टेड बनाना है और आप कंजूस हो, आप कम से कम एजेस यूज करना चाहते हो, तो फाइनली जो ग्राफ बनेगा वो एक ट्री होगा. ये डेफिनेशन है ट्री का. नोट करते हैं. ट्री इज मिनिमली कनेक्टेड. 2 पॉइंट है. एक तो मिनिमम, ठीक है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ एजेस यूज करना है. दूसरा, आपको ग्राफ को कनेक्टेड बना के रखना है. ओके, सो आई विल टेक ए पॉज फॉर 1 मिनट ताकि आप सोच सके कि मैं क्या बोल रहा हूं. मेरा स्टेटमेंट है ट्री इज ए मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ. किसी ग्राफ को अगर कनेक्टेड बनाना है लेकिन आपको कम से कम एजेस यूज करने हैं, जिस पॉइंट में ग्राफ कनेक्टेड होगा और आपने सबसे कम से कम एजेस यूज किए होंगे, उस पॉइंट में जो रहेगा वो एक्चुअली ट्री रहेगा.
All of you agree with me? Okay, now quickly fill in the blank. अब आपके लिए fill in the blanks. For a tree with n nodes, nodes की जगह आप इसको vertices बोल सकते हैं, ठीक है? कुछ लोग vertices बोलते हैं, कुछ लोग nodes बोलते हैं. The number of edges will be dash. Fill in the blanks. अगर ट्री में n नोड्स हैं तो कितने एजेस होंगे? n -1 -1 The answer is, आइए कैलकुलेट करते हैं. Let's try to make a tree of 3 nodes A, B, C. चलिए 3 नोड का ट्री बनाते हैं. हम लोग कंजूस है, कम से कम खर्च करेंगे. बताइए कितने एज लगेंगे? पहला एज इन दोनों को कनेक्ट कर लिया. क्या ये ट्री है अभी? क्या ये ट्री है? क्यों नहीं है? ये कनेक्टेड नहीं है. दिस इज डिस्कनेक्टेड. इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे कम से कम एक एज और चाहिए. ठीक है, अब ये कनेक्टेड है. इज दिस ग्राफ कनेक्टेड एट दिस पॉइंट? यस और नो? यस. क्या मैंने कम से कम एजेस खर्च किए हैं? क्या मैंने कम से कम एजेस खर्च किए हैं कि और भी कम एजेस से हो जाता है? कम से कम एजेस खर्च किए. A minimally connected graph is a tree. So that means जो मैंने बनाया है that is a tree. अब आप मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं इस ट्री में? 3. और नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? 2. So the answer is n-1. n नोड्स के ट्री में the number of edges is always n-1. n node के ट्री में the number of edges is always n-1. Please take a note of this. अगर आपके ट्री में n नोड है, n vertices है, number of edges will be n-1. ठीक है? Okay. Now let us see some special type of graphs. Some special type of graph. ओके, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ग्राफ हैं. मैं आपको बस एक बेसिक ग्राफ बता रहा हूं, नोट कीजिए. दिस ग्राफ इज नोन एज कंप्लीट ग्राफ. नाउ व्हाट इज ए कंप्लीट ग्राफ? इमेजिन कीजिए आप बहुत ही महंगे वाले किसी शहर में है, मतलब देश में है. कोई ऐसा देश है जिनके पास बहुत पैसा है. हाँ, चाइना. और चाइना कह रहा है कि मैं हर शहर का एक डायरेक्ट रेलवे लिंक बिछाऊंगा. ये देखिए, हर शहर से हर शहर का रेलवे लिंक, यानी जितने भी एजेस हो सकते हैं वो सारे एजेस को जोड़ दीजिए. क्या ये कंप्लीट ग्राफ है? नहीं है. किसके बीच में एजेस बच गया? बी और सी. क्या अब ये कंप्लीट ग्राफ हुआ? ठीक है. ओके, तो कंप्लीट ग्राफ का मतलब है, नोट करके रखिए, दैट इन ए कंप्लीट ग्राफ there is an edge between any pair of vertices या all pair of vertices actually. ठीक है, not any, it should be all. ठीक है, between all pair of vertices या between every होना चाहिए. every, sorry, I was not getting the correct word. between every pair of vertices. Okay, okay, any doubts? Okay, now complete graph दिखते कैसे हैं? Can we have a complete graph of 3 nodes? कैसा दिखेगा? 3 नोड का कंप्लीट ग्राफ कैसा दिखेगा? ट्रायंगल. इसको बोलते हैं K3. इसके लिए एक स्पेशल नाम है K3. 4 नोड का कंप्लीट ग्राफ कैसा दिखेगा? 4 नोड का कंप्लीट ग्राफ दिखेगा ऐसा. ठीक है, इसका क्या नाम होगा? एनी गेसेस? K4. 5 नोड का कंप्लीट ग्राफ कैसा दिखेगा? 5 नोड का कंप्लीट ग्राफ कैसा दिखेगा? A से C, A से D, B से E, B से D.
सी से ओके, ये 5 नोड का कंप्लीट ग्राफ है, इसका नाम क्या होगा? K5। ठीक है, ऑल दीज आर नोन एज कंप्लीट ग्राफ्स। सो कंप्लीट ग्राफ्स में every node will have one single edge with another node, with each every node. ठीक है, any doubts students? Okay, now can you tell me what is the number of edges? What is the number of edges in a complete graph with n nodes? अगर आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ है जिसमें n नोड्स हैं, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट Kn, उसमें कितने एजेस होंगे? कितने एजेस होंगे एक कंप्लीट ग्राफ में जितने n नोड्स हैं? What is the number of edges in a complete graph with n nodes? Right, so calculate करो, बेटा से बनाओ, एक कंप्लीट ग्राफ बनाओ, सोचो कैलकुलेट करो। Yeah, anyone from the online class? Any guesses? कितना? Number of edges in a complete graph with n nodes. Yeah, anyone from online? ओके, आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये वर्टेक्स नंबर 1 है, ये वर्टेक्स नंबर V2 है, ये वर्टेक्स V3 है, ये वर्टेक्स V4 है, डॉट डॉट डॉट, ये वर्टेक्स Vn है। अगर ये कंप्लीट ग्राफ है तो पहले ये बताओ V1 से लेके कितने लाइंस निकलेंगे, कितने एजेस निकलेंगे? V1 से एक लाइन होगा V2 के लिए, एक एज होगा V3 के लिए, एक एज होगा V4 के लिए, डॉट डॉट डॉट, आखिरी एज होगा Vn के लिए। तो कितने एजेस निकल रहे हैं फ्रॉम V1? एजेस फ्रॉम V1 कितने? इट इज n-1। एग्रीड? अच्छा, V2 के बारे में सोचो, V2 से कितने एजेस निकलेंगे? एक तो V2 V1 का पहले ही आपने कनेक्ट कर लिया, V2 से V3, V2 से V4, डॉट डॉट डॉट, V2 से Vn। So edges from V2 कितने हैं? It is n-2। कोई मुझे बताएगा इसमें एक कम क्यों किया आपने? V1 V2 connected. Yeah, because we have already considered the edge. We have already considered the edge V1 V2 in calculation for V1। ठीक है, इसलिए हम इसको दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहे। ये जो V1 V2 का एज है, इसको हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है तब जब हम V1 कैलकुलेट कर रहे थे। अच्छा, अगर मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं तो V1 के लिए कितने एजेस हैं? n-1। V2 के लिए कितने एजेस आए? n-2। V3 के लिए कितने एजेस होंगे? n-3। डॉट डॉट डॉट, Vn के लिए कितना एज होगा? 1। इफ आई एड ऑल दिस, अगर हम इस सब का सम करें, एड ऑल दीज एजेस, तो आंसर क्या आएगा? कैन यू गिव मी द सम ऑफ ऑल दिस? इन सबको ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? 1 से लेके n-1 का सम कितना होता है? तुमको तो मैं मान नहीं सकता, तुम लोग को पिटाई कर सकते हो। व्हाट इज द सम ऑफ 1 to n-1? n-1 upon 2। इट इज नथिंग बट n into n-1/2। कितना टाइम लगा? ठीक है, ये है टोटल नंबर ऑफ एजेस इन ए कंप्लीट ग्राफ।
This is the total number of edges in a complete graph with n vertices. ठीक है? So this is the total number of edges in complete graph, in a complete graph with n vertices. ठीक है, याद रहेगा? That is equal to n into n minus 1 by 2. याद रहेगा? आइए चेक करते हैं, आंसर। हम n को क्या लेंगे? 4 लेते हैं डिस्कशन के लिए। So let's check the answer. N is equal to 4. So let us take n is equal to 4. Okay. A, B, C, D. कितने एजेस है इसमें? कितने एजेस होने वाले? A, B, C, D 6। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? n into n minus 1 by 2 कितना आएगा? 4 into 3 by 2 कितना आ रहा है? 6। और ये है वो 6 एजेस। दिस इज एज नंबर 1, एज नंबर 2, एज नंबर 3, एज नंबर 4, एज नंबर 5, एज नंबर 6। इसको नोट कर रखिए। ओके, यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ let us see a more interesting thing. What is a spanning tree? So आपको एक ग्राफ दिया रहेगा, बस ये आज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट 5 मिनट्स। आपको एक ग्राफ दिया रहेगा और उस ग्राफ में से आपको बोला जाएगा कि स्पैनिंग ट्री निकालिए। आपको बोला जाएगा कि ग्राफ का स्पैनिंग ट्री निकालिए। नाउ व्हाट इज द स्पैनिंग ट्री? देखिए बहुत सिंपल है। लुक एट दिस ग्राफ ए बी सी। इसमें कितने एजेस हैं? नंबर ऑफ नोड्स इज 3 एंड नंबर ऑफ एजेस इज 3। क्या ये ट्री है या ग्राफ है? इज इट ए ट्री और ग्राफ? इट्स अ ग्राफ, इट्स नॉट ए ट्री। ये ट्री क्यों नहीं है? बिकॉज इट कंटेन्स अ साइकिल एंड बिकॉज इट कंटेन्स more than n minus 1 edges. Trees cannot contain cycle. ठीक है? Trees cannot contain a cycle. This is not a tree because it contains a cycle. ठीक है? Agreed? All of you agreed? Now आपको बोला जाएगा कि इस ग्राफ के एजेस को यूज करके ट्री बनाइए। तो देखिए कैसे ट्री बनेंगे। इस ग्राफ में कितने नोड हैं? 3 नोड हैं। और कितने एजेस हैं? 3 एजेस हैं। मुझे इस ग्राफ के एजेस को निकालना है और ऐसे निकालना है कि मैं ट्री बनाऊं। तो एक ऑप्शन क्या है? A to B और A to C। दूसरा ऑप्शन क्या है? कौन से एजेस को निकाल सकता हूं मैं? A to B और B to C। तीसरा ऑप्शन क्या है? A to B और नहीं, A to C और B to C। अब मुझे बताइए क्या ये सब के सब ट्रीज हैं? या all these are trees and these are known as spanning tree. Why these are known as spanning tree? Because all these are actually taking the edges of this particular graph and they are spanning over the entire nodes. तीनों नोड को कवर कर रहे हैं। स्पैन का मतलब होता है कवरेज, आपका कितना कवरेज है। ठीक है? सो स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ, प्लीज नोट इट डाउन। द स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ, G, मान लेते हैं कोई ग्राफ है जिसका नाम है G, is a tree that will span over all the nodes of the graph but it will be a tree. ठीक है? उसका मतलब है आपको बनाना तो ट्री है, सारे नोड्स को कवर करने हैं और एजेस
एजेस वहीं से लेंगे जहां से ग्राफ है. द एजेस विल बी टेकन फ्रॉम द ग्राफ. आप अपने मन से एज नहीं जोड़ सकते. आप अपने मन से एज नहीं जोड़ेंगे, एजेस ग्राफ से आएंगे. ठीक है, आइए समझते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है. पहले इसको नोट कर लीजिए. द स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ will be a tree that will span over all the vertices of the graph. It should be a tree by definition. By definition, it is a tree, and the edges will be actually the edges that is present in the graph. आइए एग्जांपल देखते हैं. Imagine कीजिए that you have a graph like this, A, B, C, and okay, just a minute. A, B, C. And D and E and F. इस ग्राफ के कितने स्पैनिंग ट्री हम बना सकते हैं? आइए ट्राई करते हैं. इस ग्राफ के कितने स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं? देखिए, पहले बताइए इस ग्राफ में व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स? व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स? 6. सो द नंबर ऑफ नोड्स इज 6. 6 नोड के ग्राफ में इन्हें 6 नोड के ट्री में कितने एजेस होंगे? द नंबर ऑफ एजेस इन ए ट्री विद 6 एजेस विल बी 5. सो उसका मतलब है हमको 5 एज निकालने हैं इसमें से, इसी ग्राफ में से. अच्छा, इस ग्राफ में कितने एजेस हैं? 1 2 3 4 5 6. इसमें नोड कितने हैं? नोड में 6 है ना, और इसमें एजेस कितने हैं? 6. इस 6 में से हमको 5 एज निकालने हैं, और वो 5 एज ऐसे होने चाहिए जो सारे वर्टिसेस को कवर करें. बिकॉज ट्री मस्ट बी, ट्री क्या होता है बताइए? व्हाट इज अ ट्री? ट्री शुड बी कनेक्टेड एंड ट्री शुड नॉट कंटेन एनी साइकिल्स. ठीक है, ओके. सो अब मुझे बताइए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? एसी हटा देंगे. या एक सेकंड. पहला ऑप्शन है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है, ओके, लेट अस ड्रॉ द फर्स्ट ऑप्शन. यहां से हम लेंगे ए बी और ए सी. ठीक है, सी डी को लेना मेरी मजबूरी है. सी डी मजबूरी क्यों है? या बिकॉज सी से डी जाने का एक ही रास्ता है, और डी ई भी मजबूरी है, और डी एफ भी मजबूरी है. ये पहला स्पैनिंग ट्री बना. दूसरा स्पैनिंग ट्री कौन सा बनेगा? ए बी को लेंगे, बी सी को लेंगे, सी डी को लेना मजबूरी है, डी ई को लेना मजबूरी है, और डी एफ को लेना मजबूरी है. राइट. तीसरा ऑप्शन बताइए. ए भी हटा देंगे. ए बी हटा देंगे. ए सी को लेंगे, बी सी को लेंगे, सी डी को लेना मजबूरी है, डी ई को लेना मजबूरी है, और डी एफ को लेना मजबूरी है. तो इस ग्राफ के 3 स्पैनिंग ट्री बनेंगे. ये सब के सब जो है ये ओरिजिनल ग्राफ के स्पैनिंग ट्रीज हैं. अच्छा, ये ट्रीज हैं इसलिए इनमें नंबर ऑफ नोड्स तो 6 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एजेस इसमें 5 रहेंगे, बिकॉज इट्स अ ट्री. नंबर ऑफ नोड्स कहां से आता है? ग्राफ से. एजेस कहां से आते हैं? ग्राफ से. लेकिन ओरिजिनल ग्राफ में और स्पैनिंग ट्री में डिफरेंस क्या है? इसमें आप देख सकते हैं, इसमें साइकिल था, लेकिन हमारे ट्री में साइकिल्स अलाउड नहीं होते. एनी डाउट्स इन दिस? आज का लास्ट क्वेश्चन, जब तक मैं अटेंडेंस देता हूं. आपके लिए क्वेश्चन है, नोट कीजिए. और ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी आता नहीं है बच्चों से. नाउ दिस इज अ चैलेंज फॉर यू. कैलकुलेट and actually draw all the spanning trees for K4. अब आप में से ये नहीं पूछेंगे कि K4 क्या होता है. K4 के जितने स्पैनिंग ट्री हैं उन सबको बनाना है और बताना है कि कितने स्पैनिंग ट्री पॉसिबल हैं. K4 मतलब जानते हो ना क्या है? इट्स अ कंप्लीट ग्राफ विथ 4 नोड्स. ओके, अटेंडेंस बोलिए.
सेक्शन ई 1 to 10 में कोई है? Sir, roll number 1 present. रोल नंबर 1. रोल नंबर 1, ओके. रोल नंबर Roll number 6. रोल नंबर 2, रोल नंबर 6 ना. Roll number 6. रोल नंबर 6 अनिकेत. रोल नंबर 7 अंजलि. रोल नंबर 9 अर्चित. रोल नंबर 3 अदिति. ओके 11 to 20. Sir, roll number 8 also present. रोल Sir, नंबर roll number 10. 8 और 10, ओके. 11 to 20. 18. Sir, 16. 17 18. 30. Sir, 14. 14 17 18, ओके. और 16, sir. 15 ऋषभ. कितना? 13, ओके. चैतन्य. Sir, 16. 16 हर्ष, ओके. ओके एक काम करते हैं, चलो 21 कबीर प्रेजेंट और एब्सेंट. कबीर. 22 खितेश्वर. 23 खुशी. Present, sir. ओके. 24 किरण. ओके. 25 क्रिश. Present. 26 Kunal. Okay, 20 Krish is present. Kunal. 27 Kunal. 28 Kunjal. Present, sir. Okay, 29 Lipakshi. 30 Mansi. Present, sir. Okay, Mansi is present. 31 Naman. 32 Paragi. Present, sir. Okay, 33 Parth. 34 Pranjal. Present, sir. Okay, 35 Pratik. 36 Priyal. Present, sir. Okay, 37 Priyesh. 38 Raghav. 39. Okay, 39 Sai Rohit. Present, sir. Okay, 40 Ritesh. 41 Ruman. Present, sir. Okay, 42 Rashi Pandey. 43 Saloni. 44 Samiksha. 45 Sanskriti. 46 Satyam. 47 Saurabh. 48 Saurabh Kushwaha. 49 Satakshi. Okay, 50 Shruti Dubey. 51 Shubham Devnath. 53 Shubham Devangan. 54 Shubhankar. Okay, Shubhankar. 53 Shubham Devangan. Yes, sir. Okay, 54 Shubhankar. 55 Somesh. 56 Soumya. Present, sir. 57 Tushar. 58 Twinkle. 59 Vikas.